So, guys, I suppose it's a long weekend now. Mahashivratri, then Saturday, then Sunday, right? So, tomorrow is Mahashivratri, okay, 8th of March. It's World's Women's Day also. And more than the Women's Day, the focal point is for us is Mahashivratri, because it is once in a year that Mahashivratri comes. Although Shivratri occurs every month in the year, like any other full moon, new moon, or Ekadashi, and other tithis, right? But Mahashivratri is such a alliance of the planets that it happens only once a year. Okay, out of 365 days, it happens once. And since last year, 2022, last to last year, now it's already 24. So last to last year, I have been seeing how and I have been advising you guys how the planet Saturn, and number 8 is slowly and slowly engulfing everyone's life. So right from 2022 year, if you see, the year began with Saturday, ended with Saturday, right? And most of the main events, dates, festives of the year was scheduled on Saturday. Similar sort of things happened, I noticed, in the year of 2023 also. And now in the year of 2024, when the year itself adds up to number 8, Mahashivratri, the first biggest festival, is on 8th of March. Okay. I don't recall Makar Sankranti. In Makar Sankranti also, I suppose something of 8 was occurring on that time also. Okay. I don't recall exactly. If somebody knows, can tell me when, which date was Makar Sankranti this year. And I remember, I suppose something of 8 happened that also. So, which means that, the things that we have already discussed are going in the same direction, right? And this year will be a very, very important, and it will be, I can't describe in words how 2024 will go. Like for those people who have been working very hard on their finances, this year will bring lots and lots of success to those guys, right? So there will be many people who will be earning lot of wealth. Those guys who are facing karmic situations this year, they will find it resolved their karmic issues. And those guys who thought they absconded from any sort of karmic doings, this year they will get trapped very badly. They might have been trapped from last 2023 second half already. Okay, 2023 second half means somewhere around August, June, July, August, these months of last year already. But this year they will get fully trapped. Okay, there will be lot of exposes of what you call scams, and lot of realities of institutions will come out, right? There will be lot of realities of people also. You will get to say the real face of people. Even in your families and your friend circle, you will get to see the real side, real face of the families. Okay, the friends and circle whom you thought that they are your good well wishers, and those sort of things, the facade will peel off. Okay, the mask will peel off this year. You will get to see, right? And if you see recently, like I told you regarding people, politicians will also get naked this year. Hopefully the political party which you guys and most of
the Indians admire the most since last 10 years, I think they will get naked this year. I have always told they will win the election, no doubt about it, but they will win to fall. Okay, they will win to fall, uh, because there is lot of wrongdoings they have been doing in the name of religion and something. People who only see at the surface value, they don't have that strength and that acumen to analyze it deep further. But like in my context, if you see through energy reading, through downloads, we get many such uh, clues from the universe. So they will get naked this year. If not this year, the next year definitely. Okay, so they will win to lose. Okay, remember this word that I've told you. They will win, but they will think that they have won already, but they'll have to forego their power, and might be there will be a re-election within like 12 to 15 months of their winning this election. Okay, so that also I'm going to, in fact I was not here to tell all this thing. I was here to discuss about Mahashivratri, but I don't know, my flow is getting towards what you call predictions for 2024 all of a sudden. I don't know how, right? So that thing will happen with that party. Calling out names is not good enough, right? So I have told, and every बच्चा बच्चा को भी समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, right? So that will happen with them, and there will be lots and lots of protests. Farmers protests are just the beginning tip of the iceberg. If you see, there will be lots and lots of protests of different sort of kind, right? uh, it might affect each and every people's life, and if you see the first half of the year, you won't feel that heat, and you might not even correlate to what I mean to say. But if you will witness the later part of this year 2024, the second half, then you will get to correlate with what I meant to tell you. you know uh, Especially again when August, uh, the more the second you like divide the year into 4 quarters of 3 months each. First 2 quarters I won't tell it anything. The last 2 quarters I'm saying. Okay, so after the somewhere around from June, July only, August, these months onwards, you will get to see slowly, many problems will come up, in terms of health hazards, in terms of protests, terms of riots, and lots of there will be destruction by these 5 elements. In 5 elements, आकाश तत्व तो उतना कुछ करेगा नहीं, it is an ether, but remaining 4 elements like पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, okay, earth, fire, water, air. These 4 elements will cause a serious havoc, okay, and that you will get to see, okay, in this year itself. And so it is a challenging one, right? And for that reason, why I have been advising you guys again and again to try to learn some good meditation techniques. Try to have some good discipline in terms of your healing, because your healing is your own responsibility, right? It's not somebody else's responsibility. It's your own damn fucking body. It's your own damn fucking soul. You have to do it. Nobody else is gonna do it for you. Like the same way you eat for yourself, you sleep for yourself, you have sex for yourself, accordingly you meditate for yourself. Nobody else will do it for you. Even the Ambani cannot pay someone and tell that, okay bacha, you go and do meditate for me because I'll pay you $1 billion. That will not happen, okay? And recently I was seeing these videos from their marriage in Jamnagar, and lot of internet is flooded with their videos. I've seen that the entire Ambani's family were feeding the poor, the orphanage people and the villagers by themselves. Now they are so filthy rich people that they can hire the catering people, and even the celebrities. If they pay, Shah Rukh Khan and Amitabh Bachchan will be serving
all there, they don't even have to, need of waiters, and they have already done it and shown in the past. But they were themselves so humble enough that they were distributing the foods, to those people. And those people who have done birth energy analysis with us, those people who have got their, date of birth analysis with us, we have advised many things that you have to do it on person to person basis. There are many things, so you do it by your own hands. Okay, you don't transfer it to someone that, see, I have got this much cash in my bank balance, I have got this much money, so I'll be paying you. Like, you go to a priest and say that, okay, do the havan or yagya for me, do the mantra chanting for me, I'll pay you 20, 40, 50,000. So that will not work. Okay, it's a very fake, what you called, ट्रेंड और प्रिजम्पशन दैट ये पंडित लोग ने फैला दिया है, दैट आई विल डू जाप इन योर फेवर. हाउ इज इट पॉसिबल? when the pandit will eat, your stomach will not gonna fulfill, right? Accordingly, when he will do the job, you will not get the benefit. He can to the max do a sort of, oath taking ceremony for you, but that will have to the limited like 3 to 6 months of protection only, right? But not beyond that, right? If you want a permanent thing to stick to you, you will have to do it yourself. And that's the reason why I have been advising you guys to participate in Mahashivratri sadhana, which will be happening exactly 24 hours after, right now, when this free session, this podcast is being held, right? And after 24 hours tomorrow, I don't know what are your plans, what you guys will be doing, how you guys will be spending your holiday and Mahashivratri, right? But those who have already enrolled with us, we will take care of, how they will be able to, wake up entire night, put their spine straight and meditate. Okay, तो वो चीज़ साथ में होगा. जो लोग शिव साधना में आए हैं वो रात भर जगेंगे, हाई वाइब्रेशन में डीप हीलिंग रिसीव करेंगे, ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एंड सुबह तक जगेंगे. दैट इज़ द गोल फॉर अस, टू वेक अप टिल मॉर्निंग, बिकॉज दैट इज़ व्हाट for which Shivratri comes in your life, right? But if I ask you guys, those guys who have not participated in Shiv Sadhana for tomorrow, not only with us, with anybody यार, जरूरी है नहीं कि हमारे साथ ही करो, कुछ भी करो, पर कुछ तो करो. ठीक है, खाली पीली मैक्सिमम ऑफ द जनता आई नो दे विल बी जस्ट ईटिंग, स्लीपिंग, पोटी करेंगे, सो जाएंगे. ठीक है ना, जो डेली रूटीन है, उसके अलावा और कुछ करेंगे ही नहीं. एंड it is really sad on our part that just a while ago, only 5 minutes before starting this conversation and going live, we have our another group where the private, what you call, soul members are there in our channel, but around 150 people are there. So there there came a discussion regarding our religion versus the other religion, especially the religion which is anti Sanatani sort of. Okay, and the person who wrote the message, she was really concerned that someone is going anti and they are not following rules, or they are not doing the right proper way. So we just advise them that, see, they are not anti us. It is their religion, it is their propaganda, it is their the priests, their preachers who are advising them to do such thing, and they are doing such thing. It is written in their books that the people who don't follow their code of conduct, they are kafirs. Okay, and you'll have to do certain things, and it is justified. So they are going by the rule. It is us who has forgotten our roots. It is us who has forgotten how to celebrate our rituals. Ask any people from our community how they will celebrate Diwali. खुद से पूछो, ठीक है ना, तुम लोग खुद से पूछो दिवाली का मतलब क्या है तुम्हारे लिए. नया कपड़ा, ठूस ठूस के मिठाई खाओगे, ठीक है, जितना शरीर झेल नहीं सकता उससे ज़्यादा, थोड़ा सा पैसा जेब में होगा,
मूवी देखोगे, शॉपिंग करोगे, जुआ ताश खेलोगे, लड़का हो तो दारू पियोगे, ठीक है, यही सब करोगे। घर भर में पूरा दिया और क्रैकर्स बर्स्ट करोगे, अननेसेसरी पैसे का सत्यानाश करोगे। कोई भी ये नहीं करेगा कि दिवाली के रात्रि को सबसे अच्छा साधना होता है वो किया जाए, ठीक है। दिवाली में बहुत सारे वास्तु के रेमेडीज होते हैं घर के अंदर, वो किया जाए, वो कुछ कोई नहीं करेगा, उसमें तो मेहनत लगता है ना, ठीक है। नवरात्रि का मतलब क्या है? वेस्ट बंगाल में हो तो पंडाल हॉपिंग करो। अरे बचपन से लेके अभी तक यार तुम पंडाल हॉपिंग कर रहे हो, तुम्हारा अभी तक वो हवस खत्म ही नहीं होता। हर पंडाल देखना है, कौन सा पंडाल में क्या खिचड़ी पक रहा है, सब जाके घूम घूम के देखना है, ठीक है ना। मरते दम तक देखना है पंडाल हॉपिंग, ठीक है ना। हर बंगाली को कीड़ा होता है, करेंगे। वही हो गया उनके लिए दुर्गा पूजा, ठीक है ना। और ठूस ठूस के खाएंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे। नवरात्रि के 9 दिन भी साधना का सबसे उत्तम दिन होता है साल का, और साल में 4 बार नवरात्रि आता है। कोई भी नवरात्रि, एक नवरात्रि छोड़ दो ना जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी नवरात्रि में तुम लोग कुछ नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है ना। जबरदस्ती दिखा के कि सर नहीं 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 आपको क्या पता, भाई मैं तुमको पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ। कई कई देवियाँ आ जाएंगे, उनके अंदर चंडिका प्रवेश कर जाएगी, ठीक है ना, और बोलने लगेगी सर हम करते हैं आपको। अरे तो तेरे को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, मैक्सिमम जनता तो यही कर रहे हैं, एंटायर फ्रॉम द कम्युनिटी, ठीक है। नवरात्रि का भी सत्यानाश। होली अभी आने वाली है। होली का मतलब क्या? लड़कीबाजी, गांजा, भांग, दारू तो मस्ट है होली में, ठीक है। नशा मस्ट है, ठीक है ना। ये करो, पूरा रगड़ रगड़ के पानी का सत्यानाश करो, होली खेलो, सब करो। अरे भाई ठीक है ये सब, पर होली के रात को, राइट फ्रॉम द टाइम द होली का दहन हैपन्स, ठीक है ना, जब से होली का दहन होता है तब से लेके इतने अच्छे अच्छे रेमेडीज़ होते हैं, इतने अच्छे अच्छे तांत्रिक विद्या जो है ना चीज़ें होते हैं जो नॉर्मल पीपल भी कर सकते हैं। तांत्रिक रेमेडीज़ मतलब ये नहीं कि एक कोई तंत्र का नॉलेज वाला बंदा को ही कर सकता है, नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। क्या आप लोग कुछ भी ऐसा करते हो? होली के रात्रि को बहुत अच्छा साधना का रात्रि होता है। क्या किसी में इतने गट्स है? अरे दिन भर में तो गुजिया, वो क्या बोलते हैं, मालपुआ, भांग, दारू, ठीक है ना, लड़कीबाजी, अफीम, और क्या डीजे नाइट्स, होली, क्या होली सेलिब्रेट करते हैं ना। अच्छा खासा महंगा एक कपड़ा खरीद लेंगे वाइट कलर का, और उसको रंग डाल डाल के डाल डाल के दिन भर अपना आड़े टेढ़े तस्वीर खिंचा के होली मनाएंगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि ये मत करो, ठीक है ना, पानी बचाओ, ये सब मैं फालतू का बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना। एनिमल्स बचाओ, ये सब बाढ़ में जाए, छोड़ो हटाओ, ठीक है ना। सेलिब्रेट करो, तुम्हारा लाइफ है ज़िंदगी में। मान लो अभी 50 साल तुम जो है ना 60 साल जिंदा रहोगे, 10-15 साल 20 साल मनाओ यार इस तरीके से, क्यों कोई रोकेगा तुमको। पर बाकी का 30-40 साल क्या करोगे? बाकी का 30-40 साल भी यही करते रहोगे, कुछ डिफरेंस नहीं। होली के रात में भी कुछ नहीं करोगे, होली के दिन में भी कुछ नहीं करोगे। बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज होते हैं भाई, जो तुम्हारे लाइफ को जो है ना तुमको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई बना सकता है, ठीक है। तुम्हारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर सकता है। पर तुम लोग क्या कभी सोचते भी हो कि ऐसा किया जाए? हाँ सर, ये कह सकते हो कि सर मैंने किया पर मेरे को कुछ नहीं फ़र्क महसूस हुआ, तो ठीक है, समझ सकते हैं कि किया तो सही, ठीक है, कोशिश तो किया। पर 99% जनता क्या है, कुछ भी ऐसा ट्राई नहीं करते, करते ही नहीं है जो बुक्स में है, जो लिखा गया है, जो बताया गया है, जो किया जा सकता है, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। खैर, तो ये बात हो गया। तो बात ये है ना कि एक्चुअल में जो हिंदू कम्युनिटी होने के बाद भी हिंदुत्व को गटर में डालने का काम खुद हिंदू लोग कर रहे हैं, ठीक है। और उंगली उठा रहे हैं दूसरे वाले को। क्यों? क्योंकि तुम मार्केट से 5 रुपए का एक भगवा कलर का, ऑरेंज कलर का लोगो लेके आओगे, हाथ में कमल का फूल एक ले लोगे, ठीक है ना, और तुम और जय श्री राम बोल दोगे, हो गए तुम हिंदू। तुमसे बड़ा हिंदू तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये है आज के डेट का हिंदुओं का सच्चाई, ठीक है ना। ये औकात है तुम लोगों का, ठीक है ना। उससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, वही तुम्हारा औकात है, वही तुम्हारा सोच है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा अगर कर लोगे ना तो शायद असल में हिंदुत्व जाग जाएगा, ठीक है। पर वो फिर झेल नहीं पाओगे ना, तुमको तो कलयुग का कीड़ा बन के रहना है, ठीक है। तो ये सब क्यों करोगे तुम? ये सब तुम करोगे ही नहीं, ठीक है। तो एक फेक हिंदुज़म डेवलप हो गया है, और वो फेक हिंदुज़म के अंदर
जितने लोग अपना रोटियां सेक सकते हैं सेक रहे हैं धर्मगुरु के नाम पे, ये सब के नाम पे। अब देखो कल महाशिवरात्रि है, अराउंड 2015 से मैं देख रहा हूँ, 14-13 अराउंड से शुरू हुआ होगा ये सारे इवेंट्स, पर 15 में मैंने देखना शुरू किया था, ठीक है ना। 15 ऑनवर्ड से रात भर कई बड़े ऐसे धर्मगुरु सॉर्ट ऑफ पीपल, वो जो है ना नाइट लॉन्ग डीजे एंड लाइव आएंगे, आपको स्ट्रीमिंग होगा यूट्यूब पे एवरीवेयर अराउंड। पर लेट मी टेल यू, क्या महाशिवरात्रि का रात्रि ये सब करने के लिए बना था क्या? आप बोलो। महाशिवरात्रि के रात भर भांड को बुला के, ठीक है ना, डीजे डांस बार क्रिएट करके, म्यूजिक करके, लेज़र लाइट करके, ये सब करके आप ठीक है करो ना, शाम के टाइम में करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा करो। पर जब मिडनाइट हो जाता है, ठीक है ना, 11 बजे भी वही चल रहा है, 12 बजे भी वही चल रहा है, सुबह 2 बजे भी वही चल रहा है, 3 बजे भी वही चल रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, कौन वहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो रेव पार्टी चल रहा है, ठीक है। और है क्या वो, बहुत बड़ा एक प्रीचर का जो है ना है वो, कई लोगों को मिर्ची लग जाएगा जो उनका जो है ना तेल मालिश करते हैं, ठीक है। एंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा ये कहने का मतलब है ना कि एंजॉय का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, ठीक है ना, एक दायरा होना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं, ठीक है। तुम किसी के पार्टी में जाते हो मान लो, ठीक है ना, तो क्या तुम्हारा एक लिमिट होगा ना कि मैं इतना खाऊंगा, इतने बजे जाऊंगा, इतने बजे आऊंगा, इतने लोगों से मिलूंगा, या क्या बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर देते हो? तो अभी ये जो सेलिब्रेशंस होता है, और जो लोग को लगता है कि ये इतना बड़ा बंदा है, इतने सारे फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं, तो ये सही होगा, मैं पूरा कंडेम करता हूँ यार, ये कंप्लीटली बुलशिट है, बुलशिट। दोज पीपल हु विल वॉच देयर लाइव स्ट्रीम थ्रू आउट, वो शाम को 7-8 बजे से शुरू हो जाएगा उनका, ठीक है ना। ऑल द म्यूजिशियंस, ऑल द एक्टर्स, जितने भी सारे लोग हैं ऐसे तामझाम आपको इंगेज करने के लिए आएंगे। बीच में वो भी मेडिटेशन कराते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कराते, पर वो मेडिटेशन हार्डली, घड़ी देख के मैं बता रहा हूँ, 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 30-35 मिनट से ज़्यादा वो करवाता नहीं है बंदा, ठीक है। यानी कि क्वालिटी कंटेंट कितना, 30-35 मिनट जो एक्चुअल में होना चाहिए नाइट लॉन्ग, ठीक है। और बाकी टाइम क्या हो रहा है, पूरा बकवास, ठीक है, गाना बजाना। अरे भाई तुम, क्या नाम है उसका यार, और वो सरदार जी का क्या नाम है, दलेर मेहंदी, दलेर मेहंदी के गानों में नाच के तुम महाशिवरात्रि में शिव को प्राप्त करोगे। कैलाश खेर के गानों में नाच के तुम महाशिवरात्रि में शिव को प्राप्त करोगे। तो फिर ऐसा अगर है तो गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गया, उसकी क्या ज़रूरत है भाई? कैलाश खेर के गाने हैं, दलेर मेहंदी के गाना है, तुनक तुन करोगे, तुमको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हो? जिस बंदा के जुरिस्डिक्शन में, जिस बंदा की लीडरशिप में ये सारे बकवास चीज़ होता है ना महाशिवरात्रि या रात्रि में, वो बंदा ने खुद जब सिद्धियां मिला होगा उसको, अगर मिला है तो, ठीक है ना, ये सब तरीके से उसने नहीं लिया है, उसने प्रॉपर साधना किया होगा, उसने प्रॉपर अपने गुरु मंत्र का चैंटिंग किया होगा, उसने हर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के आगे बैठ के साधना किया होगा। अगर वो जेन्युइन बंदा है तो, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा है कि वो जेन्युइन है या फेक है, ये है वो है, वो आपका अक्ल है यार, आपका औकात है दिमाग का, कितना आप डिसाइड कर सकते हो, आप डिसाइड करो, ठीक है। कुछ तो बात है तभी तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, बिना कुछ बात का तो इतने सारे लोग नहीं होंगे। पर बात क्या होता है ना कि बंदा जब कुछ बात हो जाता है ना, तो उसके बाद वो खुद पटरी, ट्रेन से जो है ना, रेलगाड़ी ट्रेन के पटरी से हट के खेतों में घुस के चलने लगता है, ये वाला हाल है, ठीक है। और लोग उसी को सच मान लेते हैं, राइट। तो महाशिवरात्रि को कभी भी ना उस तरीके से मत सेलिब्रेट करना जिस तरीके से कल आपको सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन नहीं वही होता, महाशिवरात्रि के रात में सबसे ज़्यादा वही होता है। अगले दिन पूरा लेज़र लाइट आएगा चारों तरफ, ठीक है ना, फोटोज़ होंगे, लाइव डांस डीजे शोज़ का जो है ना सारे मीडियाज़ में चर्चा होंगे। बट दिस इज़ नॉट द वे इन विच महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड, ओके।
So those guys who are interested to listen, I suppose last year also we have already advised, but this year also again I'll remind you guys, you know firstly, those guys who have learned Shiv Sadhana with us, okay, try to meditate शिव साधना टू द मैक्स पॉसिबल, ठीक है ना, जितना हो सके करो, ठीक है। दिन में रेस्ट कर लेना अपना, दिन में चाहे सो लो, ठीक है ना, जो हो आराम से रेस्ट करो, ठीक है ना, दिन में 10-15 घंटा सो जाओ बल्कि, ठीक है ना, शाम होने के बाद, सनसेट होने के बाद, ठीक है ना, सोना नहीं, ठीक है ना, सनसेट होने के बाद पीठ को एकदम सीधा रखना, स्पाइन को स्ट्रेट रखना, ठीक है। और देखो नए नए में जब मैं भी ये सब चीज़ों में आया था ना, तो मैं भी उस बंदे से बड़ा जो है ना सीखता था, एंड इवन आई यूज़ टू गेट इंस्पायर्ड, ठीक है। तो उससे मैंने एक ही चीज़ सीखा कि स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। उससे मैंने ये सब नहीं सीखा कि रात भर नंगा नाच करो वहाँ पे, ठीक है ना, डांडिया बजा के लाउड म्यूज़िक में, वो सब मैंने उससे नहीं सीखा, कॉपी नहीं किया। हाँ, रात को जगना है, वो मैंने उसकी, तो आपको मतलब ऐसा है ना कि आपको अगर कुछ चीज़ परोसा जाए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सही चीज़ को चुनना है और क्या गलत चीज़ को नहीं चुनना है, ठीक है। मैंने भी पिक किया उससे सही आदत, ठीक है ना, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। वो हर बार वो खुद बोलता भी है, तो मेरे लिए एज ए रिमाइंडर काम करता है, जबकि मुझे पता भी है कि नहीं, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। रात भर जगना है, तो मेरे लिए भी रिमाइंडर का काम करता है, हाँ रात भर जगना है, पर रात भर किस तरीके से जगना है, नंगा नाच करके नहीं, साधना करके, ठीक है ना, वो इतना नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन करके नहीं, शांति से, अकेले में, आइसोलेशन में, चुपचाप, ठीक है ना। तो दिन को पूरा रेस्ट करो जितना हो सके, ठीक है। रात को जिन्होंने शिव साधना लेवल 1 लेवल 2 हम लोग के साथ किया है, वो लोग करो, ठीक है ना, शिव साधना सीखा है जो। एंड थैंकफुल इस बार का जो बैच फॉर्मेशन हुआ है महाशिवरात्रि के साधना का, काफ़ी अच्छा बैच फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि in that batch there is people from level 1, there is people from level 2, there are freshers, and there are people, one person is from abroad also, but she has not joined yet. I don't know how, she has already booked and enrolled, but till now also she has not joined, okay. So people from all across India, one person from abroad also, and all sort of mixture of people, okay, have joined Mahashivratri sadhana till now. Few seats are still left, okay. I suppose if anybody is interested, I will try to accommodate you guys also, if you guys show interest, okay. And sadhana will start at 10 p.m. It will last till morning 5 a.m, okay. So what to say, it will be, at least we intend to wake up for at least for 7 hours, ठीक है। तो आपको आज रात का जो खाना खा लिया, जो लोग साधना करने वाले हैं या जो नहीं भी करेंगे हम लोग के साथ, जो अपने में भी कर रहेंगे, तो एक जेनरिक मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, इसको कम से कम फॉलो करो, ठीक है। तो आज रात को जैसे आपने खा लिया, उसके बाद कल दिन में फास्टिंग में रह लेना आप, ठीक है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं खाओगे, आप नॉन सॉल्टी फूड्स खा सकते हो, ठीक है ना, सॉल्ट मत खाओ, शुगर मत कंज्यूम करो, ठीक है ना, मिल्क खाओ, मिल्क प्रोडक्ट्स ले लो, जैसे दूध, दही, घी, ठीक है ना, पनीर, ये सब आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फ्रूट्स वगैरह जो आप खा लो, ड्राई फ्रूट्स आप खा लो, जो भी आपको खाने का मन है ये सब में, ठीक है ना, ये आप खाओ। एंड कल सुबह से लेके, ठीक है ना, अगले दिन सुबह तक आप यही डाइट के मिक्स में आप रहना, ठीक है ना। डोंट गो फॉर स्पाइसी फूड्स और जो है ना जम के खाना, ये सब नॉर्मल डे जैसा मत करो, नहीं तो इस दिन का लाभ आपको मिलेगा नहीं। तो रात को बैठ के आपने, जिन्होंने शिव साधना लेवल 1 लेवल 2 किया है, वो अपने आइसोलेशन में भी, जिनको जितना याद है, जो खुद से कर सकते हैं वो करें, और जिनको अभी भी मन है, स्पेशली दोज गाइज who are शिव साधक्स with us and still they wish to join, तो देखो आप लोगों के लिए तो फीस बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है ना। 7 आवर्स मेडिटेशन के लिए वी आर आस्किंग वेरी नॉमिनल फीस, 500-800 रुपीज़ सॉर्ट ऑफ ओनली,
ठीक है। कोई आपको करके नहीं देगा दुनिया में, ठीक है ना, कोई नहीं करके देगा दुनिया में। और करेगा भी ना तो 1-2 घंटे का मेडिटेशन होगा, बोलेगा चैप्टर खत्म, बुक खत्म, जाओ आप, हो गया, क्लास खत्म, ठीक है ना। वी आर कन्फर्मिंग फॉर 7 to 8 hours, ठीक है ना, नाइट लॉन्ग। तो आप लोग जो है ना ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग करो। जो घर में जो कोई कर रहा है, किसी के पास अगर गुरु मंत्र है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु मंत्र का चैंटिंग करो, जाप करो, ठीक है। रुद्राक्ष की माला ज़रूर अपने गले में डालना, ठीक है, बहुत अच्छा है आपके लिए। कल के दिन, कल सुबह से ही डाल लेना। एंड जिनके पास ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला नहीं है, वी हैव डिस्पैच्ड लास्ट टाइम ओरिजिनल रुद्राक्ष माला at almost half the price or 1/4 of the price also what is available in the internet, okay. So अभी आप बता दो, क्योंकि we don't do this dispatches 24/7 round the year. It happens occasionally. कभी last time people received after waiting for 6 to 7 months. So it happened in December, right? Now again in March we are ready to dispatch after 3 months, okay. और अगर मार्च में आप नहीं लोगे, आप अपने मूड के हिसाब से आओगे, तो आपको फिर से 5-6 महीना, 3 महीना जितना मिनिमम वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरा ये काम नहीं है रुद्राक्ष रोज डिस्पैच करना, ठीक है। तो किसी को चाहिए होगा बता दो, ठीक है ना। बीड्स चाहिए, सिर्फ दाना चाहिए रुद्राक्ष की 5 मुखी, विच everyone can wear, no issue on that. Any person, any sunshine, any moonshine can wear 5 मुखी रुद्राक्ष any point of time in their life, okay, and it will always benefit you. तो आइदर यू वांट बीड्स, दाने चाहिए ओरिजिनल, या माला चाहिए, ठीक है ना। यू वोंट हैव टू डाउट अ बिट रिगार्डिंग द क्वालिटी, नॉट इवन 0% you will have to doubt regarding quality, okay. It will be 110% original Rudraksh beads and original Rudraksh mala. And last time the people who had received the beads, I had personally procured the Rudraksh fruits and peeled them off and taken the beads out of it, ठीक है, ताकि ओरिजिनलिटी में कहीं से भी वो नहीं हो कि शंका भी ना हो कि यार ये वो हो गया, वुड को घिस के जो है ना रुद्राक्ष बना के बेच दिया, नो, ओके। वी हैव डिस्पैच्ड ओरिजिनल रुद्राक्ष बीड्स एंड ओरिजिनल रुद्राक्ष माला टू एवरीवन, राइट। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, इमीडिएटली मुझे बता देना, क्योंकि मैं टू द मैक्स मेरे ख्याल से प्रोक्योर कर लूँगा आजकल में, ठीक है ना। शिवरात्रि में बिजी रहूँगा संडे तक, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वीक में डिस्पैच उसको कर दूंगा। उसके बाद मेरे को, आपको सपना आएगा, आपको मूड होगा या आपका फंड इकट्ठा होगा, मैं हाथ खड़ा कर दूंगा। लास्ट टाइम ऑल्सो इट हैड हैपेंड, आफ्टर वी कंप्लीटेड द डिस्पैच पीपल स्टार्टेड लाइनिंग अप, सर हमको चाहिए था, हमको चाहिए था। तो भाई इतना देर से आप सो रहे थे, ठीक है ना, आपको चाहिए था तो आप पहले से प्रिपेयर होते ना, आप नहीं किए। तो दिस टाइम ऑल्सो आई नो दिस विल हैपन, देयर विल बी सम magnificent souls who will come up after the dispatch is completely, sir I wanted a piece of it, I wanted some more, I wanted, तो वो नहीं होगा। जिनको चाहिए वो पहले से ही बोले, और 1 दिन के अंदर बोले, 2 दिन के अंदर बोले, उसके बाद ना ही बोले, फिर चैप्टर क्लोज। फिर कब आएगा गॉड नोज, ठीक है ना। सो ये बात है, राइट। मॉर्निंग में जब आप शिवलिंग का पूजा करने के लिए जाओ, ठीक है, तो कुछ चीज़ें एकदम अनिवार्य रूप में आप चढ़ा देना, लाइक जल, सबकी बस की बात है, जल चढ़ा सकते हो। दूध सबकी बस की बात है, चढ़ा सकते हो सके तो दही भी चढ़ा देना, अगर नहीं तो एटलीस्ट जल और दूध जरूर से ज़रूर चढ़ाना। उसके बाद चावल, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। काले तिल चढ़ा देना, ठीक है ना। और आपको क्या, हरी मूंग की दाल आप चढ़ा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मिनिमम एटलीस्ट बेलपत्र, जल, दूध, भांग, धतूरा का जो फूल आता है वो, ठीक है, और अक्षत यानी कि चावल के दाने जो खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे दाने, चंदन, ठीक है, चंदन जरूर अर्पित करना आपने। इत्र या परफ्यूम जिसको बोलते हैं, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक, वो आपने चढ़ाना है, ठीक है ना। गलती से भी हल्दी वल्दी मत चढ़ा देना। कई लोग आएंगे, कहाँ से पता नहीं कहाँ से सीख लेंगे, हल्दी चढ़ाने चले जाएंगे शिवलिंग में, ये काम नहीं करना है। हाँ, चंदन, आप पीला चंदन चढ़ा सकते हो, ठीक है, हल्दी फल्दी नहीं चढ़ाना है।
केतकी का फूल लेके नहीं चढ़ाना है, ठीक है। तुलसी का पत्ता लेके नहीं चढ़ाना है, ठीक है। तो ये सब काम आप नहीं चढ़ाएंगे। उसके अलावा ये सब करने के बाद शिवलिंग में भी जब आप जल चढ़ाएंगे ना, तो जैसे आपका शिवलिंग होता है, तो शिवलिंग में आपका जो शिवलिंग का जहाँ से जल चढ़ाने के बाद जो गिरता है ना, तो उसके दायां साइड में गणेश, या राइट साइड में गणेश, लेफ्ट साइड में कार्तिक, एंड शिवलिंग के जो जड़ होता है जहाँ पे वो जो है ना कांटेक्ट पॉइंट में आता है, तो वहाँ पे माता पार्वती का स्थान होता है, ठीक है। तो आपको ये सब पॉइंट्स में भी जलधारा अपना डाल लेना है, ठीक है। जिनको अगर शत्रुओं से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एनिमीज़ वगैरह थोड़े ज़्यादा हैं अभी लाइफ में, या ऐसा कुछ आपको लगते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल को भी चढ़ा सकते हो, ठीक है। जिनको नेम फेम सक्सेस का ज़्यादा क्रेविंग है, वो गन्ने का रस चढ़ा सकता है, या कुछ नहीं तो चीनी चढ़ा सकता है, ठीक है। जिनको थोड़ा सा अपना लग्जरी है, या थोड़ा सा है ना लाइफ में रोमांस है, ये सब चीज़ को थोड़ा इंक्रीज करना है, तो परफ्यूम, कर्ड, दही ये सब चढ़ा सकता है, ठीक है ना। फ्रेश फ्लावर्स ये सब आप चढ़ाओ। पर जो फूल को मैं वर्जित किया, जैसे कि कई लोग जो है ना केतकी लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए, तो मंदिर में कोई दिखेगा तो आपको धोएगा पकड़ के वहीं पे, ठीक है ना। दोज आर बैंड आइटम्स ऑन शिवलिंग, ठीक है ना ये। एंड उसके बाद देखो, शिवरात्रि में ना सबसे बढ़िया जल डालने का टाइम या तो अर्ली मॉर्निंग होता है, या सुबह 8 बजे से पहले पहले, ठीक है ना। उसके बाद आप मंदिर जाके जल चढ़ा, एक तो मंदिर कचड़ा हो जाता है चारों तरफ, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की से वो वाइब भी ख़त्म हो जाता है। एंड 12 बजे के बाद तो वैसे भी आपको नहीं जलाना, ठीक है ना। मंदिरों में अलाउ किया जाता है 12 बजे के बाद भी, क्योंकि महाशिवरात्रि है, इतना सारा पॉपुलेशन है, तो क्या करेगा, ठीक है ना। 12 बजे के अंदर संभव ही है नहीं सबको, तो वो लोग शाम तक अलाउ कर देते हैं, ठीक है। पर शाम को सनसेट के बाद, ठीक है, आफ्टर सनसेट आपने जल नहीं चढ़ाना है शिवलिंग में। आप अगर दिन भर में नहीं मैनेज कर सकते हो चढ़ाना, तो कोई बड़ा टेंपल में मत जाना, ठीक है ना, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा वेटिंग हो लाइन को। नॉर्मल सा सिंपल जो है ना आपकी कॉलोनी के जो टेंपल होगा, कोई ऐसे टेंपल में जाओ जहाँ पे धक्का मुक्की कम हो, ठीक है ना। इसमें आपका भाव मैटर करता है। कोई ऐसा वर्ल्ड रिनाउंड टेंपल में मत चला जाना कि जहाँ पे कि आपका नंबर लगने में टाइम लग जाए, आपको लाइन ही इतना लंबा 3-3 4-4 घंटे का लाइन लग जाए। ऐसा किसी मंदिर में जाके अपना पूजा मत करना कल का, मेरा अपना हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी चॉइस आपका है, ठीक है, क्योंकि पूजा भाव से किया जाता है। पूजा तो आप मानसिक रूप से भी कर सकते हो, घर बैठे बैठे भी कर सकते हो, उसके लिए फिजिकल एंटिटी को टच करने की ज़रूरत नहीं है। पर उसके बावजूद अगर आप जो है ना करना चाहते हो, तो एटलीस्ट सेलेक्ट अ टेम्पल विच इज़ वेरी नियर बाय टू यू, विच इज़ एटलीस्ट लेस पॉपुलर, ठीक है ना, ठीक ठाक सा है, ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं होगा, ऐसा टेम्पल का चुनाव करो। कपड़ा जो आप पहन के जाओगे मंदिर में, वो 3 कलर में रेकमेंड करता हूँ। वाइट सबसे ज़्यादा बेस्ट है, पर लेडीज़ के लिए वाइट पहनना एक विधवा वाला, विडो वाला फील आ जाता है, तो लेडीज़ लोग के लिए। और यहाँ से फॉर मेल्स ऑल्सो इट अप्लाइज, द रेस्ट टू कलर्स इज क्रिम्सन रेड, खूनी लाल जिसको बोलते हैं, क्रिम्सन रेड, ठीक है ना। एंड दिस इज द सेकंड प्रेफरेंस, एंड थर्ड प्रेफरेंस विल बी ऑरेंज या येलो, ठीक है ना। ओनली दीज 3 कलर्स आई एम रिकमेंडिंग। फर्स्ट वाइट, ठीक है, सेकंड क्रिम्सन रेड, and third will be orange or yellow. Orange or yellow I'm not putting as third or fourth, it is the third option only, ठीक है, either orange or yellow, you know, it will act as the almost the same thing. तो ये कलर के कपड़े पहनो जाओ, ठीक है ना। हाँ, कुछ हद तक आप ऑरेंज, येलो या ग्रीन भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना, बट डोंट वेयर एनी अदर कलर अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है ना। और जाके लाइक आप करो तो वो फिर आप फिर अपना फिर वो कर रहे हो, फिर गाइडेंस लेने का क्या मतलब है, ठीक है ना। आप अपने मन से करो जो मन में आता है, ठीक है ना। तो ये आप देखना, ठीक है ना। एंड घर से जाते वक्त चुपचाप जाओ, वहाँ पूजा ख़त्म करके आओ तो चुपचाप आओ, ठीक है ना। ये नहीं कि रास्ते में रुक गए, लोगों से चल रहा है देश का क्या हाल है, इलेक्शन है, ये है वो है, दुकान वालों से लड़ाई कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है आपने। सीधा घर से जाना है मंदिर, मंदिर में पूजा किया, वापस घर पे आना है, ठीक है ना।
रास्ते में कोई आपको ज़रूरत का कुछ सामान लेना है तो वो आपने ले लिया, वो बात अलग है, पर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना है, ठीक है, ये आप करना। एंड शिवलिंग में जब जैसे आप जल चढ़ाओगे ना, तो जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल जब जलधारा से जैसे निकलता है ना, तो थोड़ा सा कुछ बूंदे जल अपना लोटा में डाल के, मतलब खाली लोटा मत लाना, कुछ वहाँ से कुछ बूंदे जल, या मैं तो क्या करता हूँ ना, मैं अपना तरीका बता देता हूँ आप लोग को। शिवलिंग में ही चढ़ाया हुआ कोई फूल, ठीक है ना, या धतूरा, ये मैं घर लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो, खाली हाथ नहीं आना, उसी को आप लोटा में डाल लो, लेके आ जाओ। और क्या होता है ना कि शिवलिंग में चढ़ाया हुआ कुछ भी प्रसाद खाना नहीं है, ठीक है। शिवलिंग में आपने चढ़ा दिया, हो गया, ख़त्म, बात ख़त्म, उसको खाना नहीं। जैसे मैं शिवलिंग से खाली नहीं आना है तो मैं धतूरा लेके आ जाता हूँ। अभी बनारस में भी गया था तो काशी विश्वनाथ से धतूरा जो है ना चढ़ाया हुआ ऐसा मिल गया था, मैं धतूरा लेके आ गया, ठीक है ना। उसको सिर्फ घर में रखना है। आपको चाहिए धतूरा का बीज को आप पॉकेट में काला कपड़ा में डाल सकते हो, नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा वो जो है ना डिसबैलेंस करता है, मतलब आपकी पॉजिटिविटी को बैलेंस करेगा, नेगेटिविटी को वार्ड ऑफ करेगा, ठीक है ना, वो काम होगा, ठीक है ना। तो ये अपना बेड के साइड में रख सकते हो, कहीं दरवाजे वरवाजे में टांग सकते हो, जेब में एज अ पॉकेट में रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो, ये सब आप जो है ना कर सकते हो, ठीक है। पर किसी भी चीज़ शिवलिंग में, आई एम टेल यू अगेन इन बोल्ड एंड ब्रैकेट एंड व्हाट यू कॉल्ड लेटर्स, ठीक है ना, शिवलिंग में चढ़ाया कुछ भी चीज़, चाहे कोई पंडित है या कुछ भी हो, खाना नहीं है, कंज्यूम नहीं करना है उसको, ठीक है।